শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। দশম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 134 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম आदि 10.134 অনওয়ার্ডস। सभी भक्तों से निवेदन है एकदम একাগ্র চিত্তে ক্লাস শ্রবণ করুন, মাল্টিটাস্ক করার চেষ্টা করবেন না, মোবাইল দূরে রাখুন। অনেক ভক্তরা জব করতে করতে ক্লাস অ্যাটেন্ড করে, এতে জবেরও ফল লাভ হবে না আর নাই চৈতন্য চরিতামৃতের। এই পঞ্চপুত্র তোমার মোর প্রিয় পাত্র, এই পঞ্চপুত্র তোমার মোর প্রিয় পাত্র, রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র, রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ পাত্র মাত্র। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভবানন্দ রায়কে বললেন, তোমার পঞ্চপুত্র আমার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। রামানন্দ রায় আর আমি এক, আমাদের দেহ মাত্র ভিন্ন। গৌর গণেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে পূর্ব লীলায় রামানন্দ রায় ছিলেন অর্জুন, তাকে ললিতা দেবীর অবতারও বলা হয়। আর বিশাখা দেবীর অবতার কে? হিরণ্ময় গৌরাঙ্গ প্রভু, স্বরূপ দামোদর। তো দেখুন, এই ললিতা বিশাখা দুজনেই মহাপ্রভুর অন্তিম লীলায় গম্ভীরায় ছিল, ঠিক না? ললিতা দেবীর অবতার হচ্ছে রামানন্দ রায়, বিশাখা দেবীর অবতার হচ্ছে স্বরূপ দামোদর। এই দুজনেই কিন্তু মহাপ্রভুর সঙ্গে অন্তিম লীলায় ছিল গম্ভীরায়। আবার কারোর কারোর মতে তিনি হচ্ছেন বিশাখা দেবীর অবতার। এই রে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে তার স্থান অত্যন্ত উচ্চে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, যদিও আমি সন্ন্যাসী, তবুও প্রকৃত দর্শনে আমার চিত্ত কখনো কখনো বিচলিত হয়। মাই গুডনেস, হচ্ছে মহাপ্রভু এসে বলে। কিন্তু রামানন্দ রায় এতই সংযতেন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয়কে সংযত মানে কন্ট্রোল করতে পারে ছিলেন, যে নারীর অঙ্গ স্পর্শ করলেও তার চিত্তে কোনো বিকার হতো না। এসে महाप्रभु ने बोला। किसको बोला था? जिसको भागवत सुनने के लिए भेजा था रामानंद राय के पास। किसको भागवत सुनने के लिए भेजा था? हिरण्मय गौरांग प्रभु रामानंद राय के पास। अभी अभी आया था 2-3 दिन में। हाँ, अभी आया था लेकिन याद नहीं। प्रबुद्ध मिश्रा को प्रद्युम्न मिश्रा को। अच्छा, ओके। तो प्रद्युम्न मिश्रा जाकर क्या देखा? हरे कृष्णा प्रभु जी की वो जो नृत्य करती थी, जो अप्सराएं, वो उनको नहला रहा था, उनकी सेवा कर रहा था, ये सब कर रहा था। हाँ, उन लोगों गहना पहना था, श्रृंगार कर रहा था। तो ये देखकर प्रद्युम्न मिश्रा को लगा, क्या महाप्रभु भी हमको इनके पास भेजा भागवत श्रवण करने के लिए। हाँ, लेकिन महाप्रभु फिर ये इतना बड़ा स्टेटमेंट देता है। क्या स्टेटमेंट देता है? कि मैं यद्यपि सन्यासी हूँ। रामानंद राय तो गृहस्थ था, सन्यासी नहीं था। तो यद्यपि मैं सन्यासी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे विचलित होता है। भगवान बोल रहे हैं, मेरे को कभी कभी मेरा चित्त, कभी कभी मेरा हृदय मन विचलित हो जाता है। लेकिन रामानंद राय, उनका इंद्रिय इतना कंट्रोल है, वो कभी विचलित नहीं होता नारी को स्पर्श करने के बावजूद। महाप्रभु भगवान बोल रहे हैं ऐसे। सोचिए, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं टेस्टिमनी। भगवान टेस्टिमोनियल दे रहा है। रिव्यू होता है ना, रिव्यू। भगवान रिव्यू दे रहे हैं। এভাবেই নারীর অঙ্গ। হ্যাঁ, বলুন। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, রাধে রাধে প্রভুজি। মানে এইরকম রিয়ালাইজেশন গদাধরের হয়েছিল না পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির কাছে? ঠিক সেম হয়েছিল তো মেন্টালিটি? হরে কৃষ্ণ প্রভু সেম না, মানে উনিও ভেবেছিলেন যে আবার পান খাচ্ছে, বৈষয়িক। রাইট, হরে কৃষ্ণ। এভাবেই নারীর অঙ্গ স্পর্শ করার অধিকার একমাত্র রামানন্দ রায়েরই আছে। অন্য কারোরও তাকে অনুকরণ করা উচিত নয়।
দুর্ভাগ্যবশত কিছু পাষণ্ডী রায় রামানন্দর কার্যকলাপের অনুকরণ করে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ লীলায় রামানন্দ রায় ও শরৎ দামোদর উভয়ই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণ বিরহ যুক্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করার জন্য নিরন্তর শ্রীমদ্ ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থ থেকে উপযুক্ত শ্লোক আবৃত্তি করতেন। কথিত আছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে যান তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাকে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেন, কেননা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপিকাদের মাধুর্য প্রেম তার মতো এত গভীর আর কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি। হরি বল। বাহ। दाक्षिणात्य भ्रमणेर समय गोदावरी, एक्चुअली सार्वभौम भट्टाचार्य क्या बोला था मालूम है? ध्यान से सुनिए। महाप्रभु आप दक्षिण भारत में जा रहे हैं ना, एक रामानंद राय गोदावरी तीर्थ में ऐसे व्यक्ति है, आगे मैं उनको समझ नहीं पाया, मैं तो मायावाद था, लेकिन वो कृष्ण प्रेम में ऐसे बहुत कुछ हमको शिक्षा देना चाहता था, मैं उनको अवहेलना ना किया। लेकिन अभी जब आपने मुझे को वैष्णव बना दिया, अभी मुझे को सब कुछ समझ में आ रहा है। वो जो रामानंद राय मुझे बताते थे, आप दया करके उनसे मिलिएगा। ऐसे करके सार्वभौम भट्टाचार्य गौरांग महाप्रभु से निवेदन किया था जब महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा करने जा रहे थे। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণের সময় গোদাবরী নদীর তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয় এবং তাদের সুদীর্ঘ আলোচনায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার্থীর ভূমিকা অবলম্বন করে প্রশ্ন করেন আর রায় রামানন্দ তার উত্তর দেন। ঠিক না? महाप्रभु प्रश्न कर रहा था, कहा महाप्रभु उत्तर देगा। महाप्रभु कौन सीनियर है दोनों में कौन सीनियर है? सत्यभामा माता जी सर्वभौम दोनों में, माने महाप्रभु और राय रामानंद में कौन सीनियर है? रामानंद राय, सॉरी ऑब्वियसली महाप्रभु सीनियर है, महाप्रभु भगवान है। लेकिन उम्र की बात कर रही हूँ। उम्र में भी आपको कैसे मालूम, कहीं लिखा था क्या उनका बयस कितना है? लेकिन सीनियर तो महाप्रभु साक्षात भगवान है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है भगवान प्रश्न कर रहा है, रामानंद राय उत्तर दे रहा है। तो वही बात। তাদের সেই আলোচনার চরমে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, রামানন্দ তুমি আমি উভয় হচ্ছি উন্মাদ, তাই আমরা সমতুল্য। यस राजीव लोचन प्रभु। तो आपने जो बोला उस पे मतलब जस्ट मतलब नॉट शास्त्र, थोड़ा कॉमेडी टाइप, मतलब कृष्ण रूप में अर्जुन को सिखाया था भगवान ने, तो महाप्रभु रूप में परीक्षा ले रहे हैं कि कितना याद है। हरे कृष्ण। लेकिन ये सब नहीं सिखाया था, भक्ति का साथ सिखाया था कि भक्ति क्या है। तो भक्ति का साथ ठीक है, कृष्ण प्रेम में कितना लेवल, उसके उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर क्या है। राधा रानी का सब गोपियों का श्रेष्ठ है, गोपियों से श्रेष्ठ कौन है? भाव, कृष्ण प्रेम, ठीक है, एलिमेंट्री तो जरूर। यस। श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के राजकार्य त्याग करे, राजकार्य मैंने वो गवर्नर था मद्रास का, और किनके अंडर में थे? महाराज प्रताप रुद्र। एक्चुअली ये सब एरिया महाराज प्रताप रुद्र उत्कल राजा अंडर छिल। तो बोला आप ये सब छोड़ छाड़ के आप पूरी में आ जाओ। কোথায় গেল? রাজকার্য ত্যাগ করে জগন্নাথপুরীতে যেতে নির্দেশ দেন। প্রতাপরুদ্র রাজা বলে যদিও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে দর্শন দান করতে অঙ্গীকার করেন, তবুও অস্বীকার করেন। তবুও রামানন্দ রায় একটি বৈষ্ণব পরিকল্পনার মাধ্যমে মহাপ্রভুর সঙ্গে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাৎকার घटान। ये तो हम लोग को अच्छा से मालूम है कैसे महाप्रभु एकदम पहले से रिफ्यूज कर रहा था, नहीं महाराज प्रतापरुद्र को हम दर्शन नहीं देंगे। लेकिन लास्ट में रामानंद राय सक्सेस हुआ था। रामानंद राय ने लास्ट में एकदम लास्ट में बोला था प्रतापरुद्र महाराज को, जब आप ये वाला गीत गाना। कौन सा गीत? गोपी गीत। वो सुनकर महाप्रभु और अपने आप को भूरिदा जना और रुक नहीं पाया। সেই বর্ণনা মধ্যলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছদের 41 থেকে
57 শ্লোকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রথযাত্রার দিন কীর্তনান্তে মানে কীর্তনের অন্তে জলকেলির সময় রামানন্দ রায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জলকেলির সময়, জলকেলি মানে এটা নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি হচ্ছিল, জলকেলি করে, আর জলকেলি করে তারপর মহাপ্রভু একটু বিশ্রাম করার জন্য সেই জগন্নাথ বল্লভ গার্ডেনে যায়। একদম ঠিক এটা নরেন্দ্র সরোবরের এদিকে, উল্টো দিকে যায় যখন রেস্ট করতে, ঠিক সেই সময় মহাপ্রভুকে এই এই শ্লোকগুলি গোপী গীতে শোনায় প্রতাপ রুদ্র মহারাজ। ইয়েস, হিরণ মে গোরাঙ্গ প্রভু। প্রভু ওদিন জলকালি হয়নি, ওই তো রথ টানতে টানতে তারপরে ওখানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন রথ তো ইহা লেখা হয় রথযাত্রার দিন কীর্তনান্তে মানে কীর্তনের শেষে জলকিলির সময় রামানন্দ রায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জলকালি হয়েছিল জানা নাই, ঠিক আছে হতে পারে। रथ यात्रा के बाद हिंदी में रथ यात्रा के बाद है, रथ यात्रा के बाद जल के। हाँ সেটাও ঠিক, वो तो रथ यात्रा के बाद वो तो बीच में ब्रेक लिया था महाप्रभु, সেটাও ঠিক বলেছেন আপনি। इंग्लिश में क्या लिखा है प्रभु? इसमें लिखा है कि Ramananda Rai was present during the water sports of the Lord after the Rath Yatra festival. तो इसको आइसोलेशन मिली, उसको उससे कनेक्ट मत करिए। हाँ हाँ, इसको एक्चुअली वो थक जाते हैं, थक जाने के बाद वो गार्डन में जाते हैं, वो पैर दबाते दबाते वो ही चैंट्स दैट गोपी गीत। तो हाँ, इसको तो मैंने ये वाला स्टेटमेंट फिर अलग से आइसोलेशन में लेना चाहिए, इसको जोड़िए मत उससे। जी हाँ हाँ, क्योंकि एनीवेज वो तो रथ यात्रा के बीच में महाप्रभु रेस्ट करने गए थे, जब रथ वहां से गुजर रहा था, बीच में ही आता है ना गुंडीचा और जगन्नाथ मंदिर के बीच में, रास्ते के बीच में, बड़दंडा रास्ते के एकदम आई थिंक सेंटर में ही आता है ये नरेंद्र सरोवर और जगन्नाथ बल्लभ गार्डन। ठीक बोलছি মাঝখানে আছে না? হ্যাঁ মাঝখানে অলমোস্ট ওইখানে বড় ঘন্টি নাকি ভোগ লাগে, ভোগ লাগার পরে বড় ঘন্টি ভোগ লাগে, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का थोड़ा भोग लगा तो टाइम मंदिर लगेगा, आगे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। वो तो जगन्नाथ बल्लभ गार्डन में गया, उस समय रामानंद राय का ये लीला हुआ। और ये जो लिखा है शायद एकदम अंत में रथ, वो जल के लिए कहा हुआ था शायद, या तो समुद्र में होगा नहीं तो यही होगा नरेंद्र सरोवर में, इंद्रदुम्न सरोवर में भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। यस बंकिम प्रभु बोलूं। হরে কৃষ্ণ হরি বল, রাধে রাধে। প্রভুজি আমি ইয়েতে মানে রাধা কুণ্ডে এক মহাত্মাতে শুনেছিলাম যে যখন প্রতাপরুদ্র বারবার মহাপ্রভুকে আলিঙ্গন করতে যায় তখন কোনো মতে পারেনি সরে যান, তখন এই ডিপ্রেশন হয়ে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে বললেন যে আমি কি করবো, এই পরিস্থিতি মনে হওয়ার চেষ্টা করি। নিত্যানন্দ প্রভু গোপনে বুঝিয়ে শুনিয়েছিলেন যে তুমি একটা কাজ করো, যে তুমি গোপী গীত মুখস্থ করো, তুমি গোপী গীত মুখস্থ করে যখন রথ চালু হবে, রথের আগে মহাপ্রভু যখন ঝাঁট দেবে, সোনার ঝাঁটা নিয়ে ঝাঁট দেবে, ঝাঁট দেওয়ার সময় যখন শেষ হয়ে যাবে তখনই গোপী গীত শোনাবে, দেখবে তখন মহাপ্রভু তোমাকে আলিঙ্গন করবে। অ্যাকর্ডিংলি রথের আগে কি বললেন, রথের আগে সেটা নিয়ে মহাপ্রভু হ্যাঁ রথযাত্রা যখন শুরু হয়, রথের পুরীতে রথের সিস্টেম আছে যে রথ চালুর হার আগে মহাপ্রভু মানে সোনার ঝাঁটা নিয়ে করে নিয়ে ঝাঁট দেয়। ये महाप्रभु झाड़ देता था या महाराज प्रतापरुद्र झाड़ दिया था? महाराज देता है, प्रभु ने कहा सुना है, प्रभु ने कहा सुना है इसलिए बोल रहे, भूल भाल हो गया इसे, महाराज देता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, আমরা তো চৈতন্য চরিতামৃতে পড়েছি যে রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে আইডিয়া, এই প্রতাপরুদ্র মহারাজকে আইডিয়া দিয়েছিলেন এই সময় তুমি গিয়ে। এনিওয়েজ আগে পড়ি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায় ও শ্রী সনাতন গোস্বামীকে সমান বৈরাগ্য ভাবাপন্ন বলে মনে করতেন। কেননা রায় রামানন্দ যদিও ছিলেন রাজকর্মচারী গৃহস্থ, আর সনাতন গোস্বামী ছিলেন জড় বিষয়ী সম্পূর্ণ উদাসীন সন্ন্যাসী, তবুও তারা দুইজনেই ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের সেবক এবং তারা যা কিছু করতেন তার সবই ছিল কৃষ্ণ কেন্দ্রিক। বোঝা গেল এই সেন্টেন্সটা? ভগবত প্রেমের সবচাইতে নিগূঢ় তত্ত্ব যে 3.5 জন ব্যক্তির সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আলোচনা করতেন, রামানন্দ রায় ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। 3.5 জন
হরে কৃষ্ণ। কে কে হবে? রামানন্দ রায় হবে, স্বরূপ দামোদর হবে, सिक्की माइती और और बॉन जो माधवी माधवी देवी। ও তো লেডিস বলে হাফ, 3.5। কোথায় কোথায় পেলেন এই জিনিসটা? সিকি মাইতি আবার মাধবী দেবী? अच्छा अच्छा आगे কোনো জায়গাতে আছে দেখুন। আচ্ছা লিখে নি এটা। তো এই 3.5 জন কে কে আছে? 3.5। একটা হচ্ছে রামানন্দ রায়, রামানন্দ রায়। 3.5 বলতে কি বোঝায় প্রভু? উভয় লিঙ্গ নাকি? আরেকটা হচ্ছে স্বরূপ দামোদর, স্বরূপ দামোদর। আর এটা হচ্ছে আরেকজন হচ্ছে সিকি মাইতি, SIKHI মাইতি, MAITI। আর ওনার সিস্টার মাধবী দেবী, মাধবী দেবী। মাধবী দেবী লেডিস, ওই জন্য হাফ, ওই জন্য 3.5। ঠিক আছে। यस मुरली माता जी। प्रभु जी इधर तो लिखे शिव रामानंद को 3.5 पुरुषों में, तो ना मालती देवी तो माता जी थे, तो 3.5 पुरुषों में कैसे काउंट हिंदी में पुरुष लिखा होगा, लेकिन व्यक्ति लिखा है बंगाली में। यस इंग्लिश में क्या लिखा माता जी? 3.5 personalities personalities with whom Sri Chaitanya will discuss the most confidential topic of Krishna consciousness. 3.5 personalities में लेडीज भी हो सकता है। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রামানন্দ রায়ের কাছ থেকে কৃষ্ণ ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুবল যেভাবে সর্বদা কৃষ্ণলীলায় রাধাকৃষ্ণের মিলনে সহায়তা করতেন, রামানন্দ রায় ঠিক তেমনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ বিরহে সহায়তা করতেন। রায় রামানন্দ ছিলেন জগন্নাথ বল্লভ নাটকের রচয়িতা। अच्छा, तो सुबल वाला लिखा, सुबल एक्चुअली राधा कृष्ण का मिलन में हेल्प करता था, सुबल सखा। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि रामानंद राय सुबल सखा का बता, वो लिखा नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही बता रहा है इंफॉर्मेशन के लिए। इनफैक्ट ये राधा रानी का एक भाई था, वो एकदम देखने में राधा रानी जैसा था। वो शायद कौन है? सुबल ही था ना? हिरण्यगर्भ कौन था? नहीं, श्रीदाम था। श्रीदामा। तो कभी कभी लीला में ऐसा भी आता है कि श्रीदामा को बैठा देता था राधा रानी के, वो भगवान विरह में, राधा रानी के विरह में जब, तो श्रीदामा को लाते थे, क्योंकि भाई सीधा होता है ना, कभी कभी भाई बहन एक जैसा दिखना वैसे। यस। और क्या लिखा है? रामानंद राय छिलेन जगन्नाथ बल्लभ नाटकेर रचयिता। तो नाटक, ऐसे कुछ नाटक भी हुआ था शायद। जगन्नाथ बल्लभের নাটকের ব্যাপারে কিছু কারো ইনফরমেশন আছে? मालूम है कुछ? मालूम नहीं है, देखना पड़ेगा। ये रचयिता माने उन्होंने कंपोज किया था डायलॉग्स शायद। हाँ बोलুন বঙ্কিম প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। মানে এর মনুসংহিতাতে যখন মানে অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন পুরুষ যেটা পেত 50% লেডিস পেত, অধিকারটা 50% করা হতো। পরবর্তীকালে 1895 সালে ট্রান্সফার অ্যাক্ট আছে, তখন লেডিজ আর জেন্টস সমান সমান হয়, এবং সেই আইনটা এখনো মুসলিম অ্যাক্টে মানে লেডিজ জেন্টস যেটা পাবে সেটা 50% লেডিস পাবে, অ্যাকর্ডিংলি ওখানে হাফ করা হয়েছে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 135 और 136। प्रताप पुत्र राजार অরু কৃষ্ণানন্দ, অরু না এটা ইন্দ্রাণী মাদি কিভাবে এটা প্রোনাউন্সিয়েশন? ওড্র কৃষ্ণানন্দ বলিए। প্রতাপরুদ্র রাজা অরু কৃষ্ণানন্দ, পরমানন্দ মহাপাত্র ওড্র শিবানন্দ, পরমানন্দ মহাপাত্র অরু শিষ্য নন্দ, ভগবান আচার্য ব্রহ্মানাক্ষ ভারতী, ভগবান আচার্য ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রী শিখি মাইতি আর মুরারি মাহিতি, श्री शिखी माइती और मुरारी मोहिती। एक चीज भूलिएगा मत, अभी ये जो लिस्ट में आ रहा है नाम, ये नाम में क्या क्या लिस्ट का नाम आ रहा है अभी एक एक करके? कोई बता पाएगा? कल आया था ये बात।
শাখা উপশাখা না, এখন সব উড়িয়া ভক্তদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে। लोग वहाँ जगन्नाथपुरी में जो उनके शिष्य थे, हाँ, उनका लिस्ट आ रहा था। এই লিস্ট কিন্তু সব আমার আমার মানে এগুলো সব উড়িয়া ভক্ত, মানে মহাপ্রভুর যারা উড়িষ্যায় যারা থাকতো, মানে বাকিলা ছিল আতেতে যাতেতে 4 মাস, দেয়ার গৌড়ীয় ভক্ত, এরা উড়িয়া ভক্ত। দেখি ঠিক বলছি? সবাই তো উড়িয়াই মনে হয়। कल आया था प्रभु की उनके 2 प्रकार के विशेष भक्त थे, बंगाली और उड़िया, तो उनमें से अलग अलग शायद करते होंगे। हाँ, देखिए यहाँ लिखा है 129 श्लोक में लिखा है, নীলাচলে প্রভু সহ প্রথম মিলন সেই ভক্ত গণের এবে করিয়া গণন। জগন্নাথপুরীতে যে সময় ভক্তদের সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রথমে মিলন হয়, এখন আমি তাদের বর্ণনা করব। দ্যাট মিন্স দে আর রেসিডেন্ট অফ পুরী। ওকে, এই যে কত নম্বর শ্লোক বললেন? 130 129। 129। यस, करुणा राधे माता जी। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु 131 में तो उन्होंने लिखा भी है, लिस्ट ऑफ डिवोटीज एट जगन्नाथपुरी, 7-8 जनों का, परमानंद पुरी, स्वरूप दामोदर, ये नाम भी है, सर्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथाचार्य, काशी मिश्रा, प्रद्युम्न मिश्रा, भवानंद पुराया। उड़िया भक्त माने मत समझिएगा कि इन लोग का मदर टंग उड़िया है, नो। इसका क्योंकि ये सार्वभौम भट्टाचार्य तो बंगाल से हैं, वो तो जाकर उड़ीसा में जाकर सेटल हुआ बाद में, नवद्वीपवासी था। तो इन लोग माने दे आर रेसिडेंट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि दे आर उड़िया। रेसिडेंट ऑफ उड़ीसा और उड़िया भक्त में अंतर है। अगला श्लोक अच्छा, अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरीते अवस्थान काले उड़ीसार राजा प्रतापरुद्र, उड़िया भक्त कृष्णानंद और शिवानंद एवं परमानंद महापात्र, ये तो 100% उड़िया होगा, महापात्र पूरे उड़िया टाइटल, भगवान आचार्य, ब्रह्मानंद भारती। ब्रह्मानंद भारती याद है, वो मृग चर्म पहन के आए थे। हाँ, ये भी शायद माधवेंद्रपुरी का शिष्य था, ठीक बोल जी? ब्रह्मानंद भारती। हाँ, शिखी माइती, शिखी माइती माने ये जिनका बहन के पास छोटा हरिदास गया था चावल मांगने, ओ मुरारी माहिती तार संगी छिलेन। मुरारी माहिती के बारे में कुछ मालूम। तात्पर्य, महाराज प्रतापरुद्र छिलेन गंगा वंशीय, माने गजपति, उत्कल सम्राट। कटके तार राजधानी छिलो। एक्चुअली आगे उड़ीसा का राजधानी कटक था, बाद में इसको ट्रांसफर करके भुवनेश्वर में कराया गया। कब हुआ था ये ट्रांसफर? बाद में खुर्दा हुआ था, लास्ट में भुवनेश्वर हुआ। और ये जो मुस्लिम राजा अटैक कर किया एक बार, उसका बाद खुर्दा हो गया। अच्छा, তিনি মহাপ্রভুর গুণাবলী শ্রবণ করে দিন বেশে অনেক সেবা ও উৎকণ্ঠার পর रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य साहाज्ये महाप्रभुर कृपा लाभ करें। ये महाराज प्रतापरुद्र के बारे में बोला जा रहा है। गौर गणेश दीपिकाय वर्णित হয়েছে যে হাজার হাজার বছর পূর্বে যে মহারাজ ইন্দ্রদুম্ন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনিই পরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলায় পুনরায় তারই বংশে মহারাজ প্রতাপরুদ্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। হরি বল। বাহ, हरि बोल हरि बोल। तेज, हाँ बोलून माता जी। प्रभु इंद्रधूम प्रतापरुद्र के वंशज थे क्या? हाँ, उसी लाइन में आया था ना, राजा सब राजा का राजा होगा, तो होगा बीच में बहुत कुछ होगा, तो वही फिर से अवतार लिया इंद्रदुम्न महाराज, जिनके साथ वो लीला हुआ था। लकड़ी भास के आया था, फिर सपना आदेश दिया और फिर वो जगन्नाथ मंदिर निर्माण किया, वो सब। अच्छा, जगन्नाथ जी का विग्रह निर्माण हुआ था कि मंदिर? नीलमाधव वाला विग्रह भी मिला, विग्रह के समय मंदिर प्रतिष्ठा किया।
हिरण्मय गौरांग प्रभु। अब अभी अभी जो जगन्नाथ मंदिर देख रहे हो सब बाद में तोड़ फोड़ गया था, हाँ ठीक है, वो लास्ट में कोई दूसरा राजा ने बनाया। अच्छा, हिरण्मय गौरांग प्रभु, जब जगन्नाथ विग्रह मिला मिला था तो इंद्रदुम्न राजा कोई, उसी समय उन्होंने मंदिर निर्माण किया था ना, पहला मंदिर। हाँ, पहला मंदिर निर्माण किया था। नहीं प्रभु, कौन निर्माण किया मालूम है आपको? पर वो विश्वकर्मा जी के द्वारा करवाए गए थे ना। यस, हिरण्मय गौरांग। नरेंद्र क्या बोले? अभी जो मंदिर है राजा राजा समथिंग कोई नहीं किया ना, राजा राजा राय समथिंग, क्या नाम था उनका? लांगुला नरसिंह ना कौन? राजा जा रहे थे तो ये नहीं, राजा ने जो समुद्र कुल में जो जा रहा था घोड़ा लेके, तो राजा का घोड़ा का तो मंदिर का चूड़ा से गिर गया, तो देखा कि ये मंदिर निकला, तो मंदिर निकला तो फिर राजा का सपना हुआ कि मेरे लिए तो ऐसे बना। ऐसे तो राजा ने तो ये भगवान ने जमराज को आशीर्वाद दिया था। देखो ब्रह्मा जी भी तपस्या कर रहे हैं, जमराज हम कर पूछ रहे रहे हैं कि अभी का जो मंदिर है किसने स्थापन किया है, किसी को मालूम है? स्थापना तो वो तो सत्यदेव का है। अरे जो मंदिर जो निकला वो राजा इंद्रदेव ना, जो मंदिर जो निकला ना बालू से, तब राजा इंद्रदेव ने निकला है। वो तो इनिशियल में, वो तो एकदम स्टार्टिंग में जब विग्रह प्रतिष्ठा हुआ। ओके, वही मंदिर है, वही मंदिर है, वही मंदिर है, लेकिन वो बहुत टूट फूट गया था। फिर दूसरा राजा, उनको याद नहीं आ रहा नाम। नहीं, वो कहीं इतिहास में नहीं है, वही मंदिर है। दूसरा बार कहेंगे हमको पता नहीं। यस, अच्युत करुणी से प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, ये एक ही वंश में दोनों राजा हुए, तो ये भगवान की लीला में मैंने उस समय चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, श्री क्षेत्र वाले कौन, जगन्नाथ भगवान ही थे, उनकी लीला में शायद वो प्रतिष्ठा हुआ। और फिर ये चैतन्य महाप्रभु के समय इंद्रदुम्न महाराज जब किया था वो तो बहुत आगे, महाप्रभु का तो 500 साल पूर्व में। तो वो तो जगन्नाथ भगवान के लिए किए थे ना, उन्हीं की लीला में तो इंद्रदुम्न। हाँ, वही जो एकदम स्टार्टिंग में जो हुआ था, लकड़ी भास के आया था नीलमाधव। हाँ, विग्रह नहीं बना था, तो मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए तो ब्रह्मा जी को बुलाने को गया था इंद्रदुम्न राजा। तो कितना कल्पतरु चला गया यहाँ, तो कितना राजा यहाँ से वो अधिकार कर रहा था, तो आया तो देखा कि देखो वो उनका मंदिर दूसरा राजा के ऊपर में चला गया, तो फिर ये हुआ घटना। फिर लकड़ी फिर बांकू महन से आया, फिर बना, वो बहुत लीला फिर बाद में हुआ। बोलिए प्रभु, राजीव लोचन प्रभु। हरे कृष्ण, आपको प्रतापरुद्र महाराज जो है वो क्या इंद्रदुम्न महाराज के परंपरा में आ रहे हैं? क्योंकि इंद्रदुम्न महाराज ने जगन्नाथ जी से जो वरदान मांगा था, उन्होंने बोला था कि मेरा ना कोई पुत्र हो ना पुत्री हो, तो वो वाला परंपरा तो यहाँ है नहीं, यहाँ पे तो अलग ही परंपरा चल रहा। मतलब नहीं, देखिए जरूरी नहीं कि इंद्रदुम्न महाराज एक ही लड़का था, उनका पिता का 4-5 लड़का हो सकता, वंशज में हो ही सकता है। हो सकता है कि उनका पुत्र नहीं है, लेकिन उनके भाई का पुत्र भी, तो वंशज तो गिना जाएगा ना प्रभु जी। लेकिन वहां पे जो कथा आता है उसमें तो कहीं पे उनका भाई का वर्णन नहीं आता है। प्लस दूसरा, इसका मतलब नहीं कि भाई नहीं है। दूसरा ये था कि जब इंद्रदुम्न महाराज ब्रह्माज से मिलके आए थे, तो यहाँ पे तो सब कुछ खत्म हो गया था, उनका जितना मतलब जो भी था सब कुछ खत्म हो गया था जब ब्रह्मा जी से मिलके आए थे। तभी तो जो दूसरा राजा राज कर रहा था वो तो उसको माना ही नहीं कि आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, हो ही नहीं सकता। यहाँ तो प्रभुपाद जी क्लियरली लिखा है तारी वंशे, वंशे माने फैमिली वंश है ना, तो क्लियरली प्रभुपाद जन्मजात नहीं होगा तो दत्तक लिए होंगे, ऐसा तो चलता ही है। दत्तक ना, ऐसा ये हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ प्रभु जी, वही जो एक राजा के बाद दूसरा राजा, और हाथी, ऐसा हम सुना है, हाथी कलश लेके जिसका माथा में गिरा जाता था वो राजा हो जाता था। उनका लड़का हर राजा का होता नहीं। और दूसरा अनंग चोलदेव ने जो राजा थे, चोलगंगदेव बोल के जो राजा, वही मालूम होता है मंदिर, अभी का मंदिर बने थे। अच्छा, ओके, सत्यभामा माता जी बोलिए।
प्रभु जो जो भगवान का जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, इंद्रधूम लिखा हुआ कि इंद्रधूम ही, मैं इतने दिनों से यही मतलब सोच में थे कि इंद्रधूम राजा जी बनवाए थे और विश्वकर्मा जी के द्वारा, तो क्या फिर बाद में औरंगजेब कुछ खंडित कर दिया था, तो क्या वो पूरा औरंगजेब जी प्रभु जी। औरंगजेब आई डोंट थिंक वो अटैक वैटैक, वो ऐसे ही मैंने पुराना हो गया ना, तो ठीक बोलছে, आई डोंट थिंक अटैक हुआ था हिरण्मय गौरव प्रभु। ना ना, मंदिर बालू बालू में भर गया था मंदिर का, और मैंने कहाँ है वो बल्कि किसी को पता नहीं था। उसका बाद कोई राजा जो घोड़ा में जाते थे, उसका मंदिर का जो चक्र था, चक्र उसका घोड़ा में लगा, तो उसको खुदाई किया और उस टाइम में निकला। लेकिन अभी का जो मंदिर है वो तो बहुत साल पहले हो गया, हम सुना है वही चोलो गंगदेव बनाया। वो 17 बार आक्रमण किया था औरंगजेब, तो मंदिर को अरे खंडित कर दिया औरंगजेब था। मत लाइए अभी, औरंगजेब को यहाँ मत लाइए। अच्छा ठीक है प्रभु जी, वो क्या मंदिर क्या वो पूरा खंडित हो गया था? वो जो अरे मंदिर मालूम हम नहीं, लोग वो सब देखना पड़ेगा दर्शन पूरा, करते हैं, तो मालूम नहीं। वो मंदिर किनके द्वारा वो मतलब तैयार है, तो ये तो हम लोग को जानना चाहिए ना प्रभु जी। औरंगजेब तो अभी इन्फॉर्मेशन अभी होगा तो फिर। 200 साल 300 400 साल पहले की है। उस टाइम में वो उनका कोई ये आया था उधर अटैक करके वो धन रत्न लौटने के लिए। वो मंदिर कितना महंगा मालूम नहीं, लेकिन वो सब बहुत पुराना घटना ठीक है, है। गूगल में हमको मिल जाएगा ये और सब, ठीक है और सत्यवान बोलते माता जी, प्रभु जी गूगल में जगन्नाथ मिल जी का जाएगा। बस बस विग्रह बस को। बस बस बहुत हो गया इन्फॉर्मेशन, थैंक यू, आगे बढ़ने दीजिए अभी। थैंक यू, पूरा इसका पीएचडी हो गया क्या, कब मंदिर का पूरा हुआ। उसीलिए ज्यादा कुछ बोलना नहीं, ज्यादा कुछ बोलने से बस गलती, जितना लिखा है उतना ही। यस बोलिए सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी हम ये बोल रहे थे कि आप अपने लोग जो राजापुर टेम्पल जाते वहां भी सुने थे ना कि जगन्नाथ आकर के वहां रुके थे, इसलिए वहां पे जगन्नाथ जागृत है। ऐसा भी कुछ है, किस कारण से यस, रुके मेरे को याद नहीं आ रहा है। जगन्नाथ आके रुके थे। हाँ, पुरी वाले जगन्नाथ ही वहां पे आके राजापुर जो मिसमन बहुत टेम्पल है। पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अरे क्यों लो बाबा बोलो। हाँ माता जी बोले वो सही बात है। जब वो मुगल जो आक्रमण कर रहा था ना, तो पंडालों को तो भगवान को विग्रह को लेकर शिव को कहीं कहीं छिपाता था, वो जगह में सब मंदिर से निर्माण कर। ओके ओके। और ये जो बोल रहे सत्यमा माता जी औरंगजेब आक्रमण, औरंगजेब कितना होगा 200-300 साल पहले, तब थोड़ी मंदिर बना। मंदिर बहुत आगे, तो मंदिर कब बना, मैंने इंद्रदुम्न राजा ने कब बनाया, उसके बाद फिर से दो अगले वाला राजा जो बनाया उसको निर्माण किया, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी पुराना। वो वहाँ का पंडाल लोग ही तो बोले थे 17 बार वो लोग आक्रमण किया था यहाँ पे। कौन, नहीं नहीं माता जी जगन्नाथ आप टेम्पल में माता एक जी। सेकंड एक सेकंड, कौन कौन आक्रमण किया था 17 बार? औरंगजेब। औरंगजेब। कैसे हो सकता है? और अभी तो ये जो औरंगजेब तो जस्ट 200-300, वो थोड़ी तोड़फोड़ किया उधर। जगन्नाथपुरी मंदिर जो अभी बना है, वो भी बहुत पुराना राजा ने बनाया होगा। तो वही एनीवेज, मैं पूछी था, और विग्रह का लेके सब वहां से भाग गए थे, भगवान का विग्रह। आगे 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 आप ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, जितना मालूम है सब ढाल देंगे, जितना मालूम है सब दे दो, जो चर्चा चल रहा है नहीं चल रहा है, जितना मालूम है सब दे दो भाई। अभी फिर नया नया प्रश्न आएगा उसके ऊपर। চৈতন্য ভাগবতের অন্তখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে পরমানন্দ মহাপাত্র সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। উৎকলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যত অনুচর জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে তাদের প্রাণেশ্বর বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে পরমানন্দ মহাপাত্র অন্যতম। ভগবত প্রেমানন্দে তিনি সর্বদা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা চিন্তা করতেন। ভগবান আচার্য ছিলেন হালি শহরের অধিবাসী এবং এক মহাপণ্ডিত। হালি শহর মানে ওই চৈতন্য ডুবার পাশে, ঠিক আছে, মানে ঈশ্বরপুরী শ্রীপাঠের পাশে। কিন্তু তিনি সবকিছু ত্যাগ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভের জন্য জগন্নাথপুরীতে এসেছিলেন। তার সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সখ্য রসের সম্পর্ক ছিল ঠিক বৃন্দাবনের গোপালদের গোপবালকের মতো। তিনি সর্বদা স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর প্রতি সখ্য ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি ঐকান্তিক ভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ কমল আশ্রয় করেছিলেন। তিনি কখনো কখনো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে गृहे निमंत्रण करते। ठीक है, किसके बारे में बोला जा रहा है? भगवान आचार्य। यस बोलिए माता जी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एनीवेज,
ভগবান আচার্য ছিলেন অত্যন্ত উদার ও সরল। তার পিতা শতানন্দ খাঁ যেমন ভয়ানক বিষয়ী ছিলেন, তার অনুজ গোপাল ভট্টাচার্য তেমনি মায়াবাদী ছিলেন। वाह, पूरा एकदम वैरायटी फैमिली। दोनों तो एक ही हो गया प्रभु, दोनों तो एक ही हो गया। दोनों तो एक ही हो गया, दोनों तो एक ही हो गया, क्या क्या प्रश्न का क्या अर्थ क्या है? भयानक विषयी छिलेन और ये मायावादी छिलेन, तो सिमिलर हो गया। नहीं नहीं, मायावादी अलग चीज है, विषय एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, मालूम नहीं। आगे তিনি কাশীতে মায়াবাদ ভাষ্য অধ্যয়ন করে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান আচার্যের কাছে এলেন। ভগবান আচার্য স্নেহবশত তার কাছে মায়াবাদ শুনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা ভক্তির বিরুদ্ধ বলে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাকে নিবারিত করেন। একদিন ভগবান আচার্যের পূর্ব পরিচিত এক বাঙালি কবি একটি ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরোধী নাটক রচনা করে এনে তার বাসায় অবস্থান করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে তা শোনাতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাতে অনুমতি না দিয়ে পরে যখন সেই নাটকের प्रस्तावनाताई प्रचुर भक्ति सिद्धांत विरुद्ध, तो मैंने एक कोई नाटक लिख के आया था, तो जब देखा भगवान आचार्य के थ्रू से आया तो उन्होंने रोक दिया। कौन रोक दिया? स्वरूप दामोदर, क्योंकि वो स्क्रीनिंग करते थे, आगे बढ़ा नहीं। কিন্তু স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাতে অনুমতি না দিয়ে পরে যখন সেই নাটকের প্রস্তাবনাতেই প্রচুর ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরোধ প্রদর্শন করান, তখন সেই বঙ্গদেশীয় কবি তার ভুল বুঝতে পেরে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শরণাগত হন এবং তার কৃপা ভিক্ষা করেন। हाँ, तो स्वरूप दामोदर सब दिखाया, देखो प्रस्तावना माने इंट्रोडक्शन, वही स्टार्टिंग में जो होता है उसी में स्वरूप दामोदर बहुत गलती दिखाया, और जब गलती दिखाया तो ये जो बंगाल से जो आया था उन्होंने स्वरूप दामोदर का शरणागत हो गए। সেই ঘটনা অন্তলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে 91 থেকে 168 শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। यस, बोलिए माता जी। प्रभु भगवान आचार्य, पिता खान, उनका भाई भट्टाचार्य, ऐसा भी होता है? यह तो ये लिखा हुआ है, अलग अलग सरनेम दिया हुआ है। এগুলো টাইটেল পেতো না, এক একজন উপাধি পেতো, শেষ হয়ে না হতে পারে। গৌর গণদেশ দীপিকায় উল্লেখ করা আছে যে সিকি মাইতি ছিলেন রাগলেখা নামক শ্রীমতী রাধারানী দাসী। তার ভগিনী বা ভগ্নী একই, भागिना अलग हो गया, भोगिनी और भोगनी একই। बहन का बारे में बोला गया, बहन। তার ভগিনী মাধবী ছিলেন কলাকেলী নামক শ্রীমতী রাধারানীর সহচরী। সিকি মাইতি, মাধবী এবং তাদের ভ্রাতা মুরারি মাহিতি, এরা সকলেই ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর অনন্য ভক্ত, যারা এক পলকের জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে ভুলে থাকতে পারতেন না। উড়িয়া ভাষায় শ্রী চৈতন্য চরিত মহাকাব্য নামক একটি গ্রন্থ আছে, তাতে সিকি মাহিতি সম্বন্ধে বহু বর্ণনা রয়েছে। একটি বর্ণনীয় তার এক স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। সিকি মাইতি সর্বদা মানসে ভগবানের সেবা করতেন। একদিন রাত্রে তিনি এভাবেই সেবা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন। রজনী শেষে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে গৌরপাদ পদ্ম দর্শনকারী অনুজেরা তাকে জাগরিত করছেন। এই আশ্চর্য স্বপ্ন দর্শনে জাগ্রত হয়ে তিনি তার ভ্রাতা ও ভগিনীকে দেখতে পেয়ে অতি আনন্দিত অন্তরে তাদের আলিঙ্গন করেন। তাতে তারা সকলেই বিস্মিত হলেন। সিকি মাইতি তখন তাদের বললেন, ভাই, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি তোমরা তা শ্রবণ করো, তা অতি বিচিত্র। শ্রী শচীসূতের মহিমা যে অপ্রমেয়, আজই কেবল আমি তা জানতে পারলাম। শ্রী শচীসূতের মহিমা যে অপ্রমেয়,
অপ্রমেয় অর্থ কি কেউ জানেন? हिंदी में क्या दिया हुआ है? विशाल विशाल जैसे हुआ। ये लाइन का हिंदी क्या दिया हुआ है? इंग्लिश क्या दिया हुआ है? मैंने सॉरी बोलिए, आप बोलिए प्रभु। इंग्लिश में विच लाइन इज दिस? आई वाज लिटिल डिस्ट्रैक्टेड, तो हाँ मुझे बोलिए, पता। सत्यभामा माता जी बोलिए। कहा है कि मैंने एक अद्भुत सपना देखा जिसमें मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगा। माता सची के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप सचमुच अत्यंत अद्भुत है। मैंने देखा कि श्री बस 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 चैतन्य बस बस थैंक यू। अद्भुत। শ্রী শচীসূতের মহিমা যে অপ্রমেয় আজই কেবল তা আমি জানতে পারলাম। দেখলাম গৌর সুন্দর নীলাচল চন্দ্র শ্রী জগন্নাথকে দর্শন করে তার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে প্রবেশ করছেন এবং পুনঃ পুনঃ বাইরে এসে আবার তাকে দেখছেন। কি আশ্চর্য! আমি এখনো পরমেশ্বর গৌর সুন্দরকে সে অবস্থাতেই দেখছি। আমার দৃষ্টি কি ভ্রান্ত হয়েছে? হায়, সেই অসীম কৃপা সিন্ধু গৌর সুন্দর আমাকে জগন্নাথ দেবের সামনে দেখে আমার নাম ধরে ডেকে তার দীর্ঘ উন্নত ললিত বাহুর দ্বারা আমাকে যেন আলিঙ্গন করলেন। হরিবোল। এইভাবেই পুলকিত অন্তরে শিখি মাহিতি অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রেমে গদগদ কণ্ঠ সেই কথা বলতে বলতে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। হ্যাঁ বলুন ইন্দ্রাণী মাতাজি। যা মাপা যায় না, অপ্রমেয় হচ্ছে যা মাপা যায় না। আচ্ছা, মুরারি ও মাধবী তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই কথা শুনে তাকে প্রভুর দর্শনের জন্য জগন্নাথ দর্শনে যেতে বললেন। তখন তিনি জনই নীলাচলপতিকে দর্শন করার জন্য গমন করলেন। মুরারি ও মাধবী প্রভুকে জগমোহনে দর্শন করে আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। এই জগমোহনে দর্শন করে মানে জগন্নাথ দেবে হবে না? नहीं वहाँ जगमोहन है, मदन मोहन भी है। जगमोहन के वो जो बाहर जो दरवाजे के सामने जो जगमोहन को बाहर लेके आता ना, मदन मोहन जगमोहन को जो बाहर लीला देखो বুঝতে পারলাম না। ওই গেট के सामने बाहर लीला कर लिए जो भगवान को लेके आते पालकी करके ना, हिरण्मय गौरांग प्रभु और नाट्य मंदिर जैसे ऐसे उसको जगमोहन होता है। मंदिर का बाहर में जो जगह रहता है सब दर्शक लोग बैठने के लिए, जगमोहन। यस, कल्याण राधा माता जी। प्रभु इसमें लिखा हुआ है जगमोहन कीर्तन हॉल। हाँ यस यही लिखा हुआ। ओह, they saw Lord Chaitanya in the Jagmohan Kirtan Hall looking at the beauty of Sri Jagannath deity, just as in Sikhi Maiti's dream. ওকে। মুরারি ও মাধবী প্রভুকে জগমোহনে দর্শন করে আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। তো জগমোহন ইজ দ্য হল, कीर्तन हॉल, KIRTAN हॉल, कीर्तन हॉल हॉल, वो हॉल का नाम जगमोहन। अच्छा, किंतु অগ্রজ শিখি মাইতি প্রভুকে স্বপ্নে যেমন দেখেছিলেন চতুর্দিকে গৌর সুন্দরকে ঠিক তেমন ভাবাবিষ্ট দর্শন করে তিনি প্রেমে উৎফুল্ল হলেন। মহাবাদন্য মহাপ্রভুও তাকে তুমি মুরারির অগ্রজ এই বলে আলিঙ্গন করলেন এবং শিখি মাইতি ও গৌর সুন্দরের আলিঙ্গন পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন। সেই থেকে শিখি মাইতি গৌর পাদ পদ্ম গন্ধে সবকিছু ভুলে গিয়ে অভিষ্টদেব শ্রী গৌরের সেবা করতে লাগলেন। শিখি মাইতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরারি মাইতির কথা মধ্যলীলার 10ম পরিচ্ছেদে 44 নম্বর শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। মাধবী দেবী শিখি মায়ের তিরভগিনী, माधवी देवी शिखी माइत्री भगिनी, শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যারো নাম গণি, श्रीराधार दासी मध्य जार नाम गणी। হ্যাঁ, তোরা কাহুত পিন দিয়ে দিজে প্লিজ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান ভক্তদের অন্যতমা
মাধবী দেবী ছিলেন সিকি মাইতির কনিষ্ঠা ভগিনী। তিনি ছিলেন শ্রীমতী রাধারানীর দাসীদের মধ্যে অন্যতম। অন্তলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 104 থেকে 106 শ্লোকে মাধবী দেবীর বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে শ্রীমতী রাধারানীর একজন দাসী বলে গণনা করতেন। এই জগতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর 3.5 জন অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে তিনজন হচ্ছেন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, শ্রী রামানন্দ রায় ও সিকি মাইতি, এবং সিকি মাইতির ভগিনী মাধবী দেবী স্ত্রীলোক বলে অর্ধরূপে গণনা করা হয়েছে। আপনি বলছেন हरे कृष्ण पूरा क्लियर हो गया। ऐसे भी आगे भी वही हम लोग এই সূত্রে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর 3.5 জন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। বাহ, হ্যাঁ ইন্দ্রাণী মাতাজি বলুন। না প্রভুজি আগের হাত তোলা। আচ্ছা, ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর। ঈশ্বরপুরী শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীপুর। শ্রী গোবিন্দ নাম তার প্রিয় অনুচর। শ্রী গোবিন্দ নাম তার প্রিয় অনুচর। কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী ছিলেন ঈশ্বরপুরীর শিষ্য এবং গোবিন্দ ছিলেন তার আরো একজন প্রিয় শিষ্য। গোবিন্দ ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নিজ সেবক। গৌর গণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে বৃন্দাবনে ভৃঙ্গার ও ভঙ্গুর নামক 2 জন সেবক কাশীশ্বর ও গোবিন্দ রূপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় অবতীর্ণ হয়েছেন। গোবিন্দ সর্বদাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় যুক্ত থাকতেন এবং অপরাধের ভয় থাকলেও তিনি সেই ঝুঁকি নিতে द्विधा करतें ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गोविंदो एक्चुअली ईश्वरपुरी का शिष्य है, महाप्रभु भी ईश्वरपुरी का शिष्य है, लेकिन ईश्वरपुरी ने गोविंदो को आदेश दिया था, मेरे अप्रकट के बाद तुम मेरा शिष्य श्री कृष्ण चैतन्य को सेवा करना पुरी में जाकर। और गोविंदो वही पालन करते थे। पहले पहले महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा कि अपने गुरु भ्राता से सेवा लेंगे, लेकिन फिर गुरु भ्राता ने बोला कि हमारे गुरुदेव का यही आदेश है, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। और गोविंदो के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? 7:12 को पारण टाइम है, ठीक है। हाँ, गोविंदो को क्या जानते हैं और क्या लीला जानते हैं गोविंदो के बारे में? मसाज वाला लीला किसी को मालूम नहीं है? हाँ बोलो निरंजन गौरांग प्रभु। वो जब सेवा करने का था प्रभु को माने उसको ऊपर है के जाके सेवा करते थे, लेकिन उसका बाद वो उनका प्रसाद पाना था, लेकिन आया नहीं, उधर वेट किया महाप्रभु उठने के तौर। हाँ, उसीलिए लिखा है गोविंद सर्वदा श्री चैतन्य महाप्रभु সেবায় যুক্ত থাকতেন এবং অপরাধের ভয় থাকলেও তিনি সেই ঝুঁকি নিয়ে নিতে দ্বিধা করতেন না। अपराध भय ना, क्योंकि महाप्रभु को डिंगा के चला गया, लेकिन क्यों किया? महाप्रभु को सेवा करने के लिए। तो उसके लिए अपराध का भी डर कोई प्रॉब्लम नहीं, आई टेक अपराध, लेकिन भगवान का सेवा ठीक से होना चाहिए। ठीक जैसे गोपी लोग को जब मांगा था ना चरण का धूलि दीजिए, गोपी लोग तुरंत दे दिया, और सोचा नहीं कि अरे ये देने से तो हम लोग का क्या होगा, नहीं सोचा कि भगवान की सेवा के लिए नो प्रॉब्लम। कहूत आ गया? कहूत आ गया? सब लॉग इन करिए प्लीज। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। হরি বল।